سے مشتق یہ میسج پہنچ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ لوگ ڈراموں میں بے انتہا دلچسپی لے رہے ہیں, رو رہے ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈرامے سینما گھروں میں چل رہے ہیں, اپنی پوری فیملی کئی قسطیں ڈراموں کی, ایسے جذباتی ہو رہے ہیں, ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اور بڑی تعریفیں, ایسا ڈرامہ, ایسی فلم. تو میرے بھائی یہ لغویات ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں, اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں جنت کی علامت نہیں پائی جاتی. آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا, یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے نا, تو یاد رکھو ایک انٹرٹینمنٹ جائز ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ذریعہ بنتی ہے, آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے. ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو اور آپ کو غلط میسج دیے جا رہے ہو. ڈراموں سے, فلموں سے آج تک کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا. ان ڈراموں نے, ان فلموں میں نے ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, طلاق دینے کے بعد بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے. آپ بتاؤ جب ہماری بچیاں یہ چیزیں ڈراموں میں دیکھیں گی تو طلاق کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کا وہ تباہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بار ڈراموں میں حلالہ دکھایا جا رہا ہے, حلالہ. تو کیا میسج جائے گا ان جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جو یہ سب چیزیں دیکھ؟ مجھے ایک بات بتاؤ, میرے ایک دفعہ بیان شروع ہوئے, کچھ وقت میں نے طلاق کا جائز طریقہ بیان کیا تھا, اسلام میں جائز طریقہ کیا ہے. میں نے 2-3 قسطیں ریکارڈ کروائی, کمپلیٹ کیا, اس کے بعد 1 سال تک موضوع نہیں چھیڑا. لوگوں نے مجھے کہا دوبارہ, میں نے کہا نہیں, کیونکہ ایک چیز کو جب بار لوگ سنتے ہیں تو چاہے وہ صحیح سینس میں بھی سنے, ان کی نظر میں وہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا بار ایک ٹاپک چھیڑوں گا تو ایسا نہ گھر میں طلاقیں شروع ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ او بھائی ایک چیز کتاب کی حد تک شریعت نے بتا دی, ایک دفعہ بتا دی, بار اسی کو, تو کیا ہوتا ہے, آپ ایک چیز کو بار جب سنو گے تو جو چیز انسان بار سنتا ہے زبان پر وہ ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس سے گھروں میں طلاق کا ریشو بڑھنے کا خطرہ کم نہیں ہوگا, ایک چیز کو بار ریپیٹ کیا جائے. تو بتاؤ ڈراموں میں بار طلاقیں دکھائی جا رہی ہے کہ نہیں دکھائی جا رہی ہیں؟ فلاں کی پھڈا ہوا, اس نے اس کو طلاق دے دی, ڈیورس پیپر بھیج دیے, وہ طلاق دے, وہ اس نے وہاں شادی کر لی, ادھر طلاق لے لی, ادھر آ گئی, وہ حلالہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. جب یہ چیزیں گھروں میں چلیں گی, آپ کو کتنا ہی اچھا ڈرامہ لگے, تو یاد رکھو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. مائیں بچیوں کو سکھاتی تھی, بیٹا ڈولی جا رہی ہے تو اب جنازے کی کھٹولی آئے گی واپس. بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے؟ ہم تو بچپن میں سنتے تھے, بھائی ڈولی جا رہی ہے, اب جنازے کی کھٹولی آئے گی, طلاق لے کے نہیں آنا. ہاں جہاں جائز طلاق ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے, اس میں اتنا ظلم جائز نہیں ہے کہ بچی کو بیڑا غرق کر دیا پھر بھی آپ علیحدگی. لیکن اصول تو یہی ہے نا کہ یہ بری چیز ہے. جب بار کلچر میں یہ چیز دکھائی جائے گی, شوہر نے تھپڑ مارا بیوی کو, وہ عدالت چلی گئی خلا لینے کے لیے. ہر گھر میں تھپڑ بھی ہوتا ہے, ہر گھر میں گالی گلوچ بھی ہوتا ہے, یہ تو نارمل چیز ہے. تھپڑ مارنا صحیح نہیں ہے, اچھا کام نہیں ہے کہ شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے, لیکن سب کچھ ہوتا ہے گھروں کے اندر, وہ بعد میں سب سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ڈراموں میں جب دکھایا جائے گا شوہر نے بیوی پہ تھپڑ اٹھایا, ہاتھ اٹھایا اور وہ چلی گئی عدالت سے خلا لینے, تو کل کس مرد نے غصے میں کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا لیا تو وہ عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی کیا؟ اس تھپڑ کی تلافی 100 دفعہ ہو سکتی ہے, مرد منا سکتا ہے, لیکن عدالت سے جب ڈیورس ہوگی اس کی تلافی نہیں ہوگی. مرد کے دل میں نفرت پیدا ہوگی, اس سے مجھ سے طلاق کیوں مانگی, کیوں گئی ہے ڈیورس لینے کے لیے, بچے تباہ برباد ہو جائیں گے. تو ان ڈراموں سے فیملی سسٹم کو جوڑا نہیں جا رہا, جوڑ کے نام پہ توڑا جا رہا ہے. اور میں نے اپنے دوست سے پوچھا, میں نے کہا یہ چیزیں تو فلموں میں پہلے زیادہ دکھائی جاتی تھی, تو ڈراموں پہ اتنا شور کیا؟ انہوں نے بڑی پوائنٹ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ فلموں میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ نارمل ماحول سے ہٹ کر ہوتی ہیں. ڈرامے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گھروں میں ہو رہا ہے وہ دکھایا جائے. اس کو لوگ زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے, نہ حکومت کنٹرول کر رہی ہے, نہ کوئی کیمرہ والے اس پر کوئی نوٹس لے رہے ہیں. سینما گھروں میں چلنا شروع ہو گئے, صبح شام اتنے کلپ میرے مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے, یہ مفتی صاحب یہ سین دیکھیے بڑا ٹائٹ سین ہے. کیا ہو گیا تمہیں, پاگل ہو گئے ہو تم بھائی, کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں, میں میٹنگیں کرتا ہوں بلا کے کہ یار ٹائم کی بڑی کمی ہے, میرا سارا دن اسی میں گزرتا ہے یار, بہت سارے کام کرنے ٹائم نہیں مل رہا. جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو ندامت کے ساتھ, اللہ کی قسم میری یہ حالت ہے کہ یار آج بہت سارے کام کرنے تھے مگر آج بھی رہ گئے. ہم حیران ہو رہے ہیں, آپ 2-3 4 گھنٹے کیسے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہو؟ ٹائم کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ اتنا ٹائم ہونا اس کی علامت ہے آپ کا دنیا میں کوئی ویژن ہے ہی نہیں. جس کا کوئی ہدف ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ جو ڈراموں فلموں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے نا, خدا کی قسم موت کے وقت حسرت کا سبب بنے گا. موت کے وقت اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دی ہے.
कुरान के अल्फाज देखो कि मौत के वक्त अगर तुम सारी दुनिया की सारी दौलत खर्च करके भी टाइम वापस लेना चाहोगे ना, ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, अल्लाह फरमाते 1 मिनट तो दूर की बात, 1 मिनट के 1 करोड़ हिस्से कर लो ना, वो भी नहीं मिलेगा। अभी बहुत टाइम दिया अल्लाह ने, अभी बहुत टाइम दिया है। चाहो तो ड्रामों में जाया कर दो, फिल्मों में जाया कर दो, सारा सारा दिन टीवी के सामने बैठ के क्रिकेट के मैच देख के तालियां बजाते रहो, फलाने ये छक्का मारा, फलाने चौका मारा। अभी बहुत टाइम है, लाइफ को खुदा की कसम जितना एंजॉय कर रहे हो 10 से ज़रब देके इससे ज्यादा एंजॉय करो। लेकिन जब मौत का वक्त आएगा तो ये सारे मजे किरकिरे हो जाएंगे। ये गैर मुस्लिमों के काम है, जिनका आखिरत पे यकीन नहीं है, उन पे ये चीजें सूट करती है। उनको मरना नहीं है ना, उनका तो ख्याल है मर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, उनका ये कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं जिंदगी में जितना जल्दी जल्दी एंजॉय कर सकते हो करो। जिसका आखिरत पे यकीन है उसका कोई हदफ होता है कि मुझे एक जिंदगी मिली है, दोबारा ये जिंदगी नहीं। ये हिंदुओं का नजरिया है कि 7 जन्म होते हैं, इस्लाम कहते हैं एक ही जन्म है, उसके बाद कयामत आ जाएगी, दोबारा कोई जन्म नहीं मिलेगा। और अल्लाह को देखो, अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत देने के बाद भी आसमानों पे उठा सकते थे ना, और फिर कुर्बे क़यामत में नाजिल करते। अल्लाह ने हजरत ईसा को जिंदा आसमानों पे उठा के ये मैसेज दे दिया कि जिसको कुर्बे क़यामत में नाजिल करना है उसको मौत नहीं दूंगा, आखिर में मौत दूंगा। इसलिए कि मरने के बाद उठा लेता तो तुम्हारे दिमाग में ये तस्वुर आ सकता था कि शायद हमें भी मौत के बाद दोबारा जिंदगी मिल जाए। तो मौत के बाद तो पैगंबरों को भी नहीं मिलती, तुम्हें कहां से मिलेगी, हमें कहां से मिलेगी भाई जिंदगी। तो अपने वक्तों को बर्बाद मत करें, एंजॉय करें, ऐसी चीजों को एंजॉय करें जिससे मुआशरे में तरक्की होती है। ओ भाई जॉगिंग कर लिया करो, स्विमिंग कर लिया करो, फुटबॉल खेल लिया करो, थोड़ा सा वर्जिश हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, फायदा भी होगा, एंजॉय भी होगा। ड्रामे से क्या एंजॉय कर रहे हो भाई तुम बैठ के, रो क्यों रहे हो ड्रामा देख के? वो तुम्हारा क्या लगता है जिसके साथ ये हो गया, रो रहे बैठ के जैसे पता नहीं क्या हो गया। देखो इंसान के जो आसाब है ना, आसाब, इनमें अल्लाह ने महदूद सलाहियतें दी हैं। मैंने एक अंग्रेज नफ्सियाती डॉक्टर था, उसकी एक तहरीर खुद पढ़ी थी, काश मैं उसको महफूज कर लेता तो आपको आज मैं वो तहरीर दिखाता। उसकी रिसर्च थी कि दुनिया में जो डिप्रेशन, चीखो पुकार, मार धाड़, चीजों को तोड़ फोड़ का जो कल्चर आया है, ड्रामों और फिल्मों से आया है। ये जो आज बच्चियां माँ पे चीखती है ना, आप उनकी हिस्ट्री चेक करें, ड्रामे देख के चीखती हैं। माँ ने कुछ तेज आवाज में बात कर दी, बच्ची एकदम चिल्लाएगी क्योंकि उसने ड्रामे में लड़कियों को चीखते हुए, बोलो ना, देखा। शौहर अगर गुस्सा करे, नहीं करना चाहिए लेकिन करे, तो इस्लाम कहता है तुम्हारा मोहसिन है, अगर किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो नबी ने फरमाया कि औरत को हुक्म देता किसको सजदा करे, शौहर को। नबी ने औरत के फायदे के लिए ये बात कही है। शौहर को ये होगा कि मेरी बीवी मेरा एहतराम करती है, ऊंच नीच हो जाएगी मना लेगा बाद में, उसको पता है मेरी, बर्दाश्त कर लेती है, खर्चा पूरा करेगा, जो तमीजदार शौहर है। लेकिन अगर वो इसको गुस्सा आया हुआ है और उसने आगे से ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, घर चलेगा, बोलो ना भाई। और अगर बीवी ने कभी उल्टी सीधी कर ली और इसने बर्दाश्त करने के बजाय ड्रामा देखा था, उसमें थप्पड़ मारते हुए देखा था, इसने भी रख के एक थप्पड़ रसीद कर दिया, तो इससे घर में मोहब्बत का माहौल पैदा होगा, बोलो ना भाई क्या हो गया। बल्कि मैं तो इससे आगे कहता हूं कि ड्रामों में जो मियां बीवी दिखाए जाते हैं वो कोशिश करते हैं लड़का हैंडसम तरीन तलाश किया जाए और लड़की खूबसूरत तरीन। उस जोड़े को देखकर तो वैसे ही कोई मर्द को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती और औरत को अपना शौहर अच्छा नहीं लगता। कहते हैं मियां तो ऐसे होते हैं, क्या मखनचू अब्बा ने मेरे मत्थे लगा दिया है। एक साहब मुझे कहते हैं मुझे बीवी अच्छी नहीं लगती, मैंने कहा फिल्में देखना छोड़ दो, अच्छी लगेगी तुम्हें। हाँ, जिस गरीब के सामने सुबह शाम कोरमे कबाब घूम रहे हो उसे घर की दाल अच्छी लगेगी, बोलो ना भाई। ये तो सबसे पहला नुकसान है। तो यही उन लोगों के काम है जिनका आखिरत पे यकीन नहीं है, इनसे हमारा घर तबाह। ड्रामे वालों का विजन ये नहीं होता कि घरों के माहौल को अच्छा करना है, ड्रामे का विजन ये होता है कि पैसा कमाना है। हर वो चीज जो मार्केट में चलेगी उससे पैसा आएगा। तो मार्केट में नेगेटिव चीजें ज्यादा चलती हैं। मेरे क्लिप में देखो, मैंने यूट्यूबर्स को अभी कुछ कंट्रोल किया है, पूरे बयान माँ बाप के हुकूक पर, बीवी बच्चों के हुकूक पर चल रहा है, अल्लाह उसके रसूल के हुकूक पर। दरमियान में एक लतीफा आ गया, लतीफा सबसे ज्यादा हिट होता है, समझ रहे हैं ना। तो लोगों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, वो मुस्बत चीजें कम चलती हैं। तो अगर देखो एक तैयब उर्दुगान है ना, तुर्की का सदर, मैं ड्रामों को जायज नहीं कहता लेकिन उसने भी ड्रामे बनाए, मैं नहीं कहता कि वो देखना जायज है, लेकिन फिर भी एक विजन तो रखा ना उसने जहन में कि खिलाफत उस्मानिया का सही तस्वुर दिखाना है, फैमिली सिस्टम को जोड़ना है। अभी तैयब उर्दुगान की एक स्पीच हमने सुनी, उसने कहा कि अपनी कौम को तरगीब दे रहे कम उम्री में शादियां करो। क्या तरगीब दे रहे अपनी कौम को? कम उम्री में शादियां करो। हमने अपनी नस्ल को बढ़ाना है। तुर्की को अफरादी कुव्वत चाहिए, जब नस्ल बढ़ेगी तो हमें फौज में जवान ज्यादा मिलेंगे, हमें साइंसदान ज्यादा मिलेंगे, हमें ताजिर ज्यादा मिलेंगे, तुर्की मजबूत होगा। एक विजन होगा तो ऐसी तकरीर करेगा। विजन नहीं है तो आपका मकसद सिर्फ दौलत, पैसे कमाना, मगरबी ताकतों को खुश करना, तो वो पैसे तो इन ड्रामों ने बहुत कमाए। लोग कह रहे हैं बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस कर लिया ड्रामे ने। मैं कहता हूं भाई बिजनेस अरबों रुपए का कर लिया मगर कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया।
तो बिजनेस तो मेरे भाई चर्स बेचने वाला जितना अच्छा करता है ना हेरोइन बेचने वाला, चर्स का बिजनेस ज्यादा अच्छा है या हीरोइन का? बताओ। अबे ये गुटके वाले तो बेचारे, इनका कोई बिजनेस है जो गुटके की दुकान खोल के बैठे हुए हैं? तो खुद दूसरे से गुटके उधार मांग के खा रहे होते हैं। चर्च करोगे तो ज्यादा पैसा, और अगर हीरोइन पे आ गए अरबपति बन जाओगे। तो बिजनेस नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कौम को पैगाम क्या दे रहे हो। तो भाई ये हुकूमत नहीं करेगी, ये आपने करना है, अपने घरों को आपने कंट्रोल करना है। अपने घरों से टीवी को बंद करें, काबू में लाएं। अगर रखा हुआ भी है तो उसको एक लिमिट करें, काबू में लाएं। देखें क्या हो, बच्चे लैपटॉप देख रहे हैं तो जाके हिस्ट्री तो सर्च करें कि क्या देख रहा है बैठ के वहां पे वो। बच्चियों को फोन लेके दिया हुआ है, बच्चों को तो चेक तो करें किससे बातें। भाई ये फोन जरूरत की चीज है, ये दोस्तियां लगाने की चीज नहीं है। दोस्तियों में टाइम जाया होता है। हम जब मदरसे गए, हमारे हजरत ने सख्ती से पाबंदी लगाई, किसी तालिब इल्म को किसी से दोस्ती की इजाजत नहीं है। यहां पढ़ने के लिए आए हो, समझ रहे हो ना, किसके लिए आए हो? दोस्ती की इजाजत नहीं दी। हाँ, किसी से मुनासबत होती है, वो एक अलग बात है, इंसान गपशप कर लेता है, बस इस हद तक। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने लिखा है ना कि मैं जोहर की नमाज में किसी के साथ खड़ा होकर, असर में भी उसी के साथ, तो मेरे अब्बा पूछते हैं तुम्हारा क्या लगता है, बार बार इसी के साथ क्यों खड़े हो रहे हो, क्या लगता है तुम्हारा ये? तो एक विजन होता है भाई, उस विजन में अगर कोई दोस्ती भी आ रही है तो ठीक है, उसको भी लेके चलो। लेकिन हर वो दोस्ती जो उस विजन से आपको हटा रही है, भाई पहले विजन है, पहले मकसद है, पहले मंजिल है, बाकी चीजें बाद में। आप ट्रेन में जाते हुए आपकी दोस्ती हो गई वसीम भाई से बड़ी जबरदस्त, उससे मुल्तान में उतरना, आपका विजन पेशावर है, अब आप मुल्तान में उतर गए उसके साथ। भाई दोस्त पहले होता है, दोस्त पहले भाई, ठीक है फिर चले जाओ। ये अगर इतना अच्छा है तुम्हें अपने घर में बिठा लेगा और चाय पिला के सारी जिंदगी वही ठिकाना दे देगा तो चले जाओ। अगर आपको पता है इतना लिफ्ट ये दोस्त नहीं कराएगा तो भाई बहन बहुत अच्छी दोस्ती थी, अस्सलाम वालेकुम, बदली गली से निकलो बस। तो ये जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के हैं ना, मैं इनसे कहता हूं दोस्ती करो, अपनी पढ़ाई का नुकसान दोस्त की खातिर नहीं करो। क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा ना, जो दोस्तों पे तुम टाइम जाया कर रहे हो, तो पैसा तो जाएगा, दोस्त भी चले जाएंगे साथ में। ये दोस्त भी जब तक हैं जब तक पैसे हैं, ठीक है ना। जब तुम खुद इनसे कर्जा लोगे, यार पान के पैसे दे दे, गुटके के पैसे दे दे, तो जो जिगरी दोस्त है ना, जो तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ के ला रहा था, सबसे पहले तुम्हें देख के रास्ता वही चेंज करेगा। वो गली में देखेगा वो जिगरी दोस्त आ रहा है, बोलेगा इधर निकल ले यार, क्योंकि उधर जो आ रहा है वो जिगरी नहीं है, उसको बर्दाश्त कर सकता हूं, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब कुछ काम के बन जाओगे, दोस्तियां तो तुम्हारी तरफ दौड़ के आएंगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिर तुम्हारे पास लिफ्ट कराने का टाइम नहीं होगा। तो अपने आप को कुछ बना लो मेरे भाई, ड्रामों में टाइम जाया नहीं करो, फिल्मों में टाइम जाया नहीं करो। ये तो कमाने के धंधे, इनको कमाने दो। तुम अपना पैसा इन पे क्यों खर्च कर रहे हो भाई? तुम किसी और चीज पे खर्च करो यार। ये जो मैंने ड्रामों फिल्मों की बात कर रहा हूं कि लोग टाइम जाया कर रहे हैं, देखो टाइम जाया करने की दो किस्में होती हैं। कुछ तो हमारे नौजवान छड़े छाट होते हैं जो सिर्फ इसलिए फुहश फिल्में देखते हैं अपनी यानी हराम ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। इनको आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है। इनको मैं कहता हूं भाई चलो गुनाह हो गया, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, उसमें पढ़ते ना चले जाओ। तौबा की कोशिश करो, तौबा कर ली, फिर तौबा टूट गई, दोबारा तौबा करो, 10 बार तौबा करो। गुनाह करते हुए शर्म आनी चाहिए, तौबा करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। माहौल ऐसा है, बहुत से लोग इसमें मुब्तला हुए हैं। तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खोल दिया, वापस पलटाओ, वापस आ जाओ। मायूसी नहीं है कि एक दफा किसी से गुनाह हो गया तो अब वो बस आप उससे नजरें फेर लें और उस पर लानतें भेजना शुरू कर दें, या वो अपने आप को कहे मैं तो खत्म हो गया, मैं तो ना 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 ना। अल्लाह की यहाँ रहमत है, सबकत रहमती अला गज़बी। अल्लाह फरमाते मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। आ जा, वापस आ जा। माहौल है, लोगों को बुराइयां करवा रहा है, वापस आए और उलमा से राब्ता करें, अहलुल्लाह से राब्ता करें। भाई मुझसे ये गुनाह नहीं छूट रहा, कोई तरीका बताएं छूट जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह छूट जाएगा। हमने बहुत से लोग ऐसे देखे जो गुनाह की लत पड़ चुकी थी, मगर उनकी जिंदगी से अल्हम्दुलिल्लाह देर से निकला मगर निकल गया। तो हिम्मत वाले लोगों की जिंदगी से जल्दी निकल जाता है, कम हिम्मत लोगों की जिंदगी से देर से निकलता है, लेकिन निकल जाता है अगर कोई चाहेगा। नहीं चाहेगा तो मामला खराब है। दूसरा, एक लत पड़ती है ड्रामों की। वो ड्रामों की जो लत है जिसका मैंने तस्करा किया, ये लत भी बड़ी खतरनाक है। इसमें आपको टाइम पास करने के लिए कोई चीज चाहिए होती है, तो इस लत के लिए यह भी जरूरी है कि आप किसी बुजुर्ग से राब्ता करें या कोशिश करें छोड़ने की। एक और चीज इससे ज्यादा जरूरी है कि मुफीद कामों में जब आप टाइम लगाएंगे, आप अपना फालतू टाइम किसी ऐसे एंटरटेनमेंट के काम में लगाएं जो दिलचस्पी हो और उसमें फायदा भी हो, तो उससे आप इन चीजों से बच जाएंगे। देखो डॉक्टर जब किसी को सिगरेट छुड़वाते हैं तो सिगरेट का कोई ऑल्टरनेट दे देते हैं ना उसको, जिससे हीरोइन छुड़वाई जाती है उससे कुछ ऑल्टरनेट दे दिया जाता है, भाई ये हीरोइन का मुतबादिल है, कुछ दिन ये फिर ये भी छुड़वा देंगे। तो जब आपको ड्रामों की, लड़कियों को ज्यादा आदत है ड्रामों की, तो वो कहते हैं हमारा जो टाइम नहीं पास होता। तो टाइम तो देखो पास होता है तभी तो कब्रिस्तान आबाद हुए हैं ना। ये जिनका टाइम पास हुआ था तो पास करके कब्र तक पहुंचे हैं ना भाई। अरे जो कब्रिस्तान भर रहे हैं तो टाइम पास जिन लोगों का हुआ था, जो पास करके वहां चले गए। पास होता है तो उधर पहुंच जाता है आदमी। तो ये कब्रिस्तान भरते इसलिए कि लोगों का टाइम पास हो जाता है। तो टाइम तो पास हो रहा है, तारीखें चेंज हो रही हैं,
मिनट तब्दील हो रहे हैं, घंटे चेंज हो रहे हैं, तो ये तो टाइम पास तो होगा। आप ये कह सकते हैं बुरे कामों में करो या अच्छे कामों में, तो बुरे कामों में भी पास होगा और अच्छे कामों में भी। तो जब बुरे से अच्छे काम करने के लिए रखोगे तो बुराई से बचोगे ना। हमारे नौजवानों का मसला ये है कि बोर बैठे हुए होते हैं फालतू, कह रहे हैं यार मैं बोर हो रहा हूं, अब क्या करूं, ड्रामा ही देख लूं, क्योंकि बोरियत भी तो एक टेंशन है ना। क्या हो गया यार, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा कि आप लोग को क्या हो गया, एक टेंशन है ना, बोरियत करने का कुछ काम नहीं है। खवातीन घर में बहुत सी जो मेरा बयान नहीं सुन रही, बिल्कुल फारिग हैं, वैसे खवातीन से बात करो कह रही एक्चुअली काम इतने हैं भाई, ये घर क्यों गंदा पड़ा हुआ है, क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता भाई को। बच्चों को आपने कितना कुछ पढ़ा दिया कि ट्यूशन क्यों जा रहे हैं बच्चे, आप घर में पढ़ा लो भाई, टाइम कहाँ है। एक तरफ ये कि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, दूसरी तरफ ये कि क्या करें, अब टाइम कैसे पास करें। जब ड्रामे की बात आए ना भाई, टाइम कैसे पास करें, अबे एक तरफ टाइम नहीं है, दूसरी तरफ टाइम पास करने के लिए जगह नहीं मिल रही, तुम्हें कहां टाइम पास करें। तो ये मुतजाद चीजें जो समझ में नहीं आ रही, असल में आ सबकी रही है घुन्ने बने हुए समझ में नहीं आ रही। तो बात यह है कि जब आप बोर हो गए ना, फालतू बैठे हुए, कोई करने धरने का काम नहीं है, तो यहां शैतान फिर अपना ठिकाना बनाता है। शैतान कहते हैं बंदा बिल्कुल फारिग बैठा हुआ है, बोर भी हो रहा है, इसको इंटरनेट पे ले जाके बिठा दो, ये देख ले तू, अपनी हराम ख्वाहिश पूरी कर ले, या ये ड्रामा देख ले, बड़ा ड्रामा चल रहा है, सारी दुनिया से तारीफें सुनी हुई हैं, तो फिर वो जज्बाती होगा, रोएगा धोएगा या हंसेगा, जो भी होगा, तो बड़ा अच्छा टाइम क्या हो गया, पास हो गया। तो पहले तो दिमाग में ये बिठा लो कि ये बुराई है, इसका कोई फायदा नहीं है, इससे कल्चर तबाह हो रहा है, जैसे मैंने बताया अभी। दूसरा, अब इसको छोड़ना कैसा ही अगला मरहला है। तो छोड़ने का पहला स्टेप ये है कि भाई कोई मुफीद काम तलाश कर लो। जब कोई हदफ बनाते हो मैंने ये करना है, तो फिर हर वो चीज जो उस हदफ में रुकावट बनती है, उस इंसान उसको साइड पे लगा देता है। तो वो हदफ कैसे बनाया जाता है? पहली बात तो ये तो हर मुसलमान का एक हदफ तो बना हुआ है, आखिरत की तैयारी, ये तो हर एक का है। उसके बाद छोटे छोटे हदफ भी होते हैं, भाई मैंने एमएससी करना है, मैंने पीएचडी करना है, मैंने एक नया, और चलो रक्षा चला रहा हूं तो मैंने एक ऐसा रक्षा और खरीदना है, क्या ख्याल है ठीक है ना, कुछ भी हदफ हो सकता है। मैं टमाटर बेच रहा हूं तो यार मेरी एक के बजाय 2 रेडियां हो जाए तो अच्छा नहीं है, क्या ख्याल है। तो कुछ सोचेगा बैठ के। अब जब आपको आधा मसला तो इसी से हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगला रह जाएगा कि बहुत सारे मुफीद काम होते हैं लेकिन दिल नहीं लगता इंसान का उसमें, तो उसका तरीका यह है कि फिर अगर आप बोर हो भी रहे हैं ना, तो बोरियत दूर करने का कोई ऐसा तरीका तलाश कर लो कि मजेदार भी हो और बोलो ना भाई फायदेमंद भी हो। नहीं आ रही बात। मीठा खाने का जिन लोगों को शौक है बहुत ज्यादा, मैं कहता हूं फिर शहद खा लो, मीठा भी चला जाएगा और फायदा भी बहुत होगा। आप कह सकते हो शहद की अब आदत नहीं रही है, तो जैसे चीनी की आदत थी जब पैदा हुए थे, जब पैदा हुए तो क्या माँ के पेट में चीनी कोई खिला रहा था? वो भी तो अम्मा ने आदत डाली ना। तो जैसे खाने से चीनी की आदत पड़ गई तो शहद खाने से कुछ दिनों में चीनी गंदी लगेगी, शहद अच्छा लगने लगेगा। तो माहिरीन कहते हैं 21 दिन तक किसी चीज को मुसलसल किया जाए तो इंसान यूज टू हो जाता है, उससे वहशत खत्म। जो चीनी छोड़ना चाहते हैं ना उनको मैं कहता हूं 21 दिन शहद खाओ, 21 दिन के बाद चीनी गंदी लगेगी, शहद अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। 21 दिन तो कंट्रोल कर लो ना भाई, पूरी जिंदगी तब्दील हो रही है। अब आप कह सकते हैं शहद के पैसे नहीं है, तो फिर जिस चीज के पैसे हैं वो खाना शुरू कर दो ठीक है ना, गुड़ खा लो, तो वो तो एक अलग। तो ये सोच लो जिस टाइम पे ड्रामा देखते हैं ना उस टाइम पे बैठ के ये सोच ले कि कितने पैसे हैं और इसका अल्टरनेट क्या कर सकता हूं मैं, तो ये सोचने में टाइम लगाएं। फिर भी मैं कहता हूं जायज इंटरटेनमेंट की तरफ आ जाओ। जायज भी बहुत सारी चीजें जो ड्रामे से ज्यादा आपको इंटरटेन भी करेंगी और आपकी जहनी तफरी का सबब भी बनेंगी। घुड़सवारी कर लो, पिकनिक, बेगम को गाड़ी में बिठाओ, या गाड़ी नहीं है तो रक्षा लो, नहीं तो पैदल निकल लो अगर रक्षे के पैसे भी नहीं है। 20 बच्चों को लेके कहीं चले जाओ यार घूमने फिरने। बेगम बोल रही है सैनमा घर जाना, बोले सैनमा घर के अलावा जहां बोलेगी ले जाऊंगा मैं। चमुनी आपस में मिलने चलते हैं, चलो आज, ठीक है ना ठीक है, आज तुम्हारी फुप्पो के घर चलते हैं, आज तुम्हारे अब्बा की खैरियत पूछने चलते हैं। नहीं तो वैसे आओ, चलो बेगम जो पैसे हमें वहां खर्च होते हैं ना सैनमा घर में जितने टिकट है उससे डबल पैसे तुम मुझसे वैसे ही ले लो। लेकिन ये वो इतनी आजकल बेगमें मालदार हो गई हैं, खुद जॉब करेंगे, ये तो हमें इन चीजों की। मैंने एक वो बयान किया था कि अगर मर्द बीवी पे कभी गुस्सा करता है तो उसकी तलाफी भी हो सकती है। अदालती खुला में हो मामला चला गया तो तलाफी का दरवाजा बंद। तो मैंने कहा जैसे कभी गुस्से में ये कर दिया वो कर दिया, तो चलो यार आज बेगम को पिज्जा खिला दें। उस पर खातून ने लिखा था ये पिज्जे वीजे हमारे लिए कोई वैल्यू, मैं तो हर तबके में बयान कर रहा हूँ ना, गरीबों में भी अमीरों में भी। तो वो जो अमीर खातून है उनके लिए तो पिज्जे की कोई वैल्यू, वो कहें तू बता तूने कितने पिज्जे खाने हमसे बता, है भाई। तो हर चीज हर एक के लिए नहीं होती, वो तो गरीबों के लिए था ना, बेचारों के लिए। उनके लिए तो बेचारा गरीब आदमी के लिए तो बर्गर पिज्जे की बड़ी वैल्यू, उसकी जेब में पैसे कहाँ होते हैं। तो उन खवातीन को ये नहीं इतना ख्याल हुआ कि ये ताना देने के बजाय आप ये सोचो कि मुफ्ती साहब का बयान हर तबका सुनता है, तो खाम हमें ताना देना ये तो तकब्बुर है ना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इसकी तलाफी हो सकती है, स्विमिंग सीखो, घुड़सवारी सीखो, कराटे
क्लब में एडमिशन ले लो, जिम जाया करो, डंड वंड पेला करो वहां बैठ के, ठीक है ना, फिर खाओ पियो जान बनेगी, जॉगिंग करो। इनमें अल्लाह ने खुदा की कसम ज्यादा मजा रखा है। हमें याद है जिस दिन हम सुबह अच्छी तरह जॉगिंग करें, सारा दिन ऐसा हंस खेल के गुजरता है कि मजा आता है। उस वक्त तो आदमी को तकलीफ होती है क्या हो रहा है, सांस फूल रहा है। इन चीजों में ज्यादा लज्जत रखी है अल्लाह ताला ने। अल्लामा इब्न हजम एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनको जेल हो गई थी हुकूमत में, तो वो ना जेल में कैद थे, तो एक इल्मी मसला सोच रहे थे हल करने के लिए, वो हल हो नहीं रहा था, जेल में टाइम बहुत होता है ना। तो वो उन्होंने अपनी तारीख में लिखा है कि जब क्या हुआ कि सुबह ना अल्लाह ने मेरे दिल में वो मसले का जवाब डाल दिया और वो मसले की तहकीक हो गई। कहते हैं इतने में कैदी, वो जेल का जो दारोगा है वो आया, उसने कहा कि आपकी रिहाई का फैसला कर दिया है। कह रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे रिहाई की खुशी ज्यादा हो रही है, ये जो मेरा इल्मी मसला हल हुआ उसकी खुशी ज्यादा हो रही है। तो इल्म का ज़ौक़ एक दफा इंसान पैदा कर ले, किताबों से मुनासबत पैदा कर ले, तो ड्रामों की लज्जत बोलो भाई भूल जाएगा। जिनका दिमाग रिसर्च करने वाला होता है ना, उनको रिसर्च में मजा आता है। हमें अपना पता है, हम जब किसी मसले पे बैठ के रिसर्च कर रहे हो ना, और उसमें फिर वो तहकीक होती चली जाए, इतनी खुशी होती है कि क्या बताऊं मैं, ऐसा मजा आता है यार, खानदानी काम हो गया आज, ठीक है ना। तो मुफीद चीजों में दिलचस्पी लेंगे तो पैदा होगी ना। देखो जब ये पेप्सी कंपनी, पेप्सी कोका कोला तो चल रही थी, जब ये ड्यू नई नई आई है ना, जब ये हमें याद है बचपन में जब ये ड्यू आई ना, ड्यू जो है ना कोल्ड ड्रिंक, तो ये कंपनी वाले फ्री में बांट रहे थे। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार ये फ्री में क्यों बांट रहे हैं? उन्होंने कहा टेस्ट गेन करने के लिए। पहली दफा में कोई अपने पैसों से नहीं खरीदे, पहले चस्का डालो। पहली दफा में तो ऐसा लगेगा खांसी का शरबत है, क्या है, जब फ्री में तो पी लेता है इंसान, खांसी का शरबत भी पिलाओगे ना, हमारी कौम को फ्री की माशाल्लाह ऐसी आदत है, तेजाब पिला दोगे वो भी पी लेगी, वो जो फ्री में मिल रहा है ना, तो बशर्ते कि उससे इलाज भी फ्री में हो रहा हो। तो वो मैंने पूछा लोगों से ये क्या हो रहा है, उन्होंने कहा असल में टेस्ट को ना गेन करना पड़ता है। जो चीज कभी ना खाई हो तो आहिस्ता आहिस्ता खा के फिर उसका चस्का लगता है। तो कंपनियां पहले ये चाय जब आई ना हिंदुस्तान में, तो फ्री में बांटती थी, गोरों की कंपनियां फ्री में चाय बांटती थी। लोग शुरू में तो मुंह बना बना के पीते थे, उसके बाद ऐसा चस्का लगा, रोटी खत्म हो जाए लोग पागल नहीं होते, चाय ना मिले पागल हो जाएंगे, रोडों पे निकल आएंगे। तो ये हाल हो गया है। तो भाई जब चाय जैसी चीज और ड्यू जैसी चीज जो सेहत के लिए 100% नुकसानदेह है, उसके चस्के लग सकते हैं, तो अच्छी चीजों में चस्का नहीं लग सकता क्या? तो कुछ दिन किताबों में जाओ, किताबें पढ़ना सीखो, मुताला करना सीखो, सीरत को पढ़ो, कुरान की तफसीर पढ़ो, उलमा के बयानात सुनो, मुख्तलिफ टॉपिक पर रिसर्च करो, या आप किसी शोबे में हो, यूनिवर्सिटी में हो, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका टॉपिक है, उसमें जाके कुछ खुद भी रिसर्च कर लिया करो कभी बैठ के, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको रिसर्च का ज़ौक़ पैदा होगा। जब पैदा होगा तो भाई फिर ऐसा मजा आएगा कि ये ड्रामे फिल्मों की लज्जत भूल जाओगे आप। तो इसका अपना चस्का है। गालिबन अल्लामा नवाज शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है, वो बीमार थे तो मुताला कर रहे थे, तो हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह उनके पास गए, उन्होंने फरमाया बीमारी में आप ऐसा पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई देखो बीमारी में मरीज को क्या चाहिए, सुकून चाहिए ना। कहा हाँ। तो कहा मुझे मुताले में सुकून मिलता है, मुझे सुकून अल्लाह ने किस में रखा है? मुताला करने में, स्टडी में सुकून है मेरा। तो जब किसी चीज की आदत डालोगे ना तो इंशाअल्लाह आदत बढ़े। आप कह सकते हो कि स्टडी करना आती नहीं है हमें, बाज लोग ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश या उर्दू अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश या उर्दू अच्छी कर लो, तो टीचर आए कर लो, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, यार मुझे उर्दू किताबें नहीं समझ में आ रही है, मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, तो मैं पढ़ लूं। तो जब सीख जाओगे, ऐसे ऐसे लोगों को हम जानते हैं, रक्षा चलाते थे, एक लफ्ज नहीं आता था, तो उनको किसी ने गाइड किया कि यार ये सीख लो, ऐसी इंग्लिश फट बोल रहे हैं, आदमी हैरान हो जाए, ये रक्षा चलाता था इंग्लिश देखो माशाल्लाह। उर्दू ऐसी खानदानी के मिर्जा गालिब भी आए तो हैरान हो जाए, यार ये क्या हो गया। तो हर चीज सीखने से, भाई जब रक्षा चलाना भी तो सीखा है ना, इसका मतलब सीखने के मैनर्स आपने मौजूद हैं, तो कहीं भी कुछ भी सीखोगे। इंसान में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो यूट्यूब पे मैं कभी कभी जापानियों की कलाबाजियां देखता हूँ, चाइना और जापानी ना, ये कलाबाजियां, यू उधर से आ रहा है, उधर से यू घुमा गया, आदमी हैरान होता है, ये इंसान है, बंदर है, क्या है ये, लंगूर है, क्या है। तो क्या उसने सीखा ना, तो सीख के आदमी पता नहीं क्या क्या बन जाता है भाई सही है ना। तो हम तो ये लंगूर की तरह उछलने कूदने को अच्छा नहीं समझते, को सीखना था तो कोई और कुछ सीख लेता। खलीफा हारून रशीद के दौर में एक आदमी ने कहा कि मैं ऐसा निशान लेता हूं, वो ना सुई को ना तीर की तरह फेंकता था और सुई के नाके से गुजार देता था, सुई के नाके, इतना निशाना था। हारून रशीद ने कहा इसको 10 दिरहम भी दो और 10 चित्रौल भी लगाओ इसके। अबे ये क्या, दिरहम दे तो चित्रौल क्यों, चित्रौल तो दिरहम क्यों? उसने कहा दिरहम तो इसलिए दे रहा हूं कि मेरे दरबार में आया है, अपनी कलाकारी दिखा के उम्मीद लेके आया कि पैसे मिलेंगे, तो बादशाह के लिए ये अच्छा नहीं है कोई उम्मीद लेकर आए और उसको पैसे ना मिले, हमारी सखावत के ये खिलाफ है, तो पैसे मिलेंगे। चित्रौल इसलिए कि तू कमबख्त इतनी तूने मेहनत की होगी इसमें, तो इतना निशाना ठीक करने की तुझे जरूरत क्या थी? जंग में इतने निशाने की, इतना होता है खोपड़ी में जाके लग जाए, बस इतना काफी होता है।
इतने एक्यूरेसी के लिए कि सुई के नाके से तू सुई गुजार रहा है, इसके लिए तो 15-20 साल कम से कम तूने सारा दिन सुबह शाम यही काम किया होगा, इसलिए उसने चित्रौल लगाए। तो वो उस जमाने में हुक्मरान में कुछ समझदारी थी कि कौम गलत न जा रही हो। हालांकि इस निशाने का फिर भी कुछ ना कुछ फायदा है, फिर भी फायदा है। जंग में बाज दफा एक्यूरेसी की जरूरत होती है। आज जो चीजें सीखी जा रही हैं, उधर से वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, रस्सी टाप रहा है वो ना, रस्सी टाप टाप के 1 सेकंड में इतनी दफा टाप लेता है। तो क्या इससे कौम को क्या फायदा होगा? ब्लेड खा लेता है। यूट्यूब पे एक देगा ब्लेड खा के निकलने को, लोग तालियां, माशाल्लाह ब्लेड खा रहा है भाई। तो हमारी हुकूमत आई तो भाई हम तो सबसे पहले चित्रौल लगाएंगे। क्या तू ब्लेड खा के तू कुछ और काम कर लेते? तो देखो, अंग्रेज को फॉलो मत करो, वो बड़े कलाबाजियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनका तो दुनिया का कोई मकसद ही नहीं है ना। वो यूं उछल रहे हैं, यूं कूद रहे हैं, उनके जो करने के काम है वो तो फॉलो कर नहीं रहे, जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं। एक्टर है, एक्ट्रेस है, बहरहाल एक एक्ट्रेस है, गालिबन राबिया, एक नाम का एक हिस्सा मुझे याद है, अगला उसके साथ अगला हिस्सा मुझे याद है। तो कोई खूबसूरत अदाकारा है। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी मुलाकात हुई थी ना लाहौर में, उसने मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया था कि आपने मेरे फेवर में बयान दिया तो अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक दी। तो अब वो तस्वीर भी वायरल हो गई, मेरे साथ कुछ लोग भी थे, तो मुलाकात की उसने, तो वो तस्वीर वायरल हुई। उन्हीं दिनों में एक शख्स आया, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा मैं, आपको क्या पता किसकी बात हो रही है, इसलिए कोई गीबत नहीं है। ये गीबत जब होती है जब पता तो हो ना किसकी बात हो रही है। माशाल्लाह अच्छा आदमी था, लेकिन कंफर्म अंधेरे में नजर नहीं आता वो। अगर अंधेरे में उसको खड़ा कर देते तो वो बंदा नजर नहीं आता। और डेंटिंग पेंटिंग का भी काफी काम था उसमें, रिपेयरिंग, मेरा तो मशवरा ये थे पूरा रिपेयर होगा ये, लेकिन बहरहाल इतना था कि डेंटिंग पेंटिंग से बाज लोगों की राय ये थी कि नहीं सेट हो। मेरा ख्याल ये था कि इसको खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा, ये रिपेयरिंग से ठीक होने वाला नहीं। अब मेरा स्टाइल है यार इस तरह बात करने का, क्या करूं मैं, तो आपको कहानी बता रहा हूं ना, जब तक मैं ये नहीं तड़का जाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। अब वो एडमिन को, हमारे उस्मान को तंग कर रहे हैं, बार बार मुफ्ती साहब से मिलना है, बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, 1 दफा 2 दफा। मैंने कहा मेरे ये जो स्केड्यूल होता है तो मैं लोगों को कहता हूँ कि अगली दफा में कुछ जैसे टाइम देता हूँ ना मुलाकात का, तो अब इतने लोग हैं तो अब अगली दफा में, ऐसे मैं उसको टालता फिर मैंने कहा इसको टाइम दे दो यार। तो काम क्या कह रहे, बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, मुफ्ती साहब से कहें बहुत जरूरी काम है। तो मैंने उस्मान से कहा कि यार आप इससे काम की नौयत तो पूछो, तो मैं इसको फिर टाइम देता हूं। तो उस्मान ने नौयत पूछी, मुझे बताया कि वो कह रहा है कि मैंने मुफ्ती साहब से कहें कि मेरी उससे शादी करा दें, वो जो क्या नाम था, राबिया करके कुछ, राबिया पीरजादा है, पता नहीं लाहौर में होती है। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट लेके आया हूं और इतने दिनों से मैं इसी सिलसिले में आपसे मुलाकात चाह रहा हूं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। तो इसको क्या कह रहा है, मैंने कहा तू मुझे भी पिटवाएगा, कह रहे नहीं पैगाम भेज देना, ट्राई करके देखने में। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मैंने कहा अब इसको दोबारा खोल के जोड़ो उस्मान भाई, अब ये रिपेयरिंग से, ये सॉफ्टवेयर का मसला है, ये सिर्फ ऊपर का मटेरियल का मसला नहीं है, इंटीरियर में भी क्या है। मैंने कहा इसको बोलो खुदा के बंदे, वो तुझसे क्यों शादी करेगी अल्लाह के बंदे। तो खैर मुझे नहीं पता फिर बेचारा कहां चला गया। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उसकी वहां शादी करा दे जो उसके लिए बेहतर हो। लेकिन बहरहाल फिर मैंने कहा कि यार ये रिपेयरिंग का केस नहीं है, ये बाकायदा खोल के दोबारा इसको जोड़ना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर भी इसमें दूसरे डालने पड़ेंगे, अपडेट होने से भी काम चलेगा। लेकिन बहरहाल कॉन्फिडेंस को सलाम है, कॉन्फिडेंस तो एक क्वालिटी तो है ना, कॉन्फिडेंस तो था उसका। खैर असल में जब इश्क सवार हो जाता है ना तो फिर इंसान पागल हो जाता है, उसको इश्क हो गया था, असल बात ये। और ये इश्क माशिकों में ये नॉर्मल है। तो जब इश्क हो जाए ना किसी का, तो इसलिए तो शरीयत ने औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया है भाई। वो टीवी में भी देख देख के भी आशिक हो जाते हैं, वो आशिक हो गया, उसकी नींदें उड़ गई बेचारे की, तो उसको ये उम्मीद हो गई कि शायद हो जाए। जब आशिक होता है ना उसको उम्मीदें हो जाती हैं। तो मैंने कहा तू आशिक हो गया, मुझे क्यों पिटवा रहा है भाई तू। उसको पैगाम भेजूंगा, मेरे पास नंबर भी था उनका, मैंने कहा पैगाम भेजूंगा, बोलेंगे पहले तो वो कहेगी मुफ्ती साहब ड्रामा कर रहे हैं मेरे साथ, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। खैर देखो, किसी भी चीज की जो फजीलत होती है ना, कोई भी चीज जो काबिल तारीफ होती है, दो वजह से वो काबिल तारीफ होती है और उसको कोई अवार्ड दिया जाता है, कोई उसकी तरफ दिल माइल होता है। या तो उसका मटेरियल ऐसा बेहतरीन हो कि बड़ा कीमती हो, जैसे सोना है, सोने से आप छोटी सी ईंट भी बना दो, कोई हार बुंदे, कोई चूड़ियां, ऐसी नहीं, बस सादा सी ईंट बना दो तो भी वो बड़ी कीमती चीज है, उसको बहुत सजा के तमीज से लॉकर में रखा जाता है। वजह क्या है कि जो बनी हुई चीज है वो तो ऐसे ही है, एक छोटा सा पत्थर बना दिया, लेकिन जिस मटेरियल से बनी है वो मटेरियल क्या है बोलो, तो बहुत कीमती है। तो अल्लाह फरमाते हैं इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून, हमने तुम्हें जिस मटेरियल से बनाया वो कोई कीमती चीज नहीं है, वो गलीज पानी है। मिट्टी और मुख्तलिफ अज्जा को
کشید کے اللہ نے اس کو، جب ماں باپ خوراک کھاتے ہیں تو اس سے وہ اسپم بنتا ہے، وہ اتنا غلیظ پانی ہے کہ لوگوں کو اس سے گھن آتی ہے. ان الم نخلقکم من ماء مہین، قرآن کہتا ہے کیا میں نے تمہیں ایک ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ انتہائی ذلیل پانی، گھٹیا. جب ہم بنے ہیں تو بھی ایک بہت باریک سی لیئر ہمارے اوپر چڑھا دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھنے میں تھوڑے اچھے لگتے ہیں. وہ ذرا سی لیئر ہٹ جائے اندر گند ہی گند بھرا ہوا ہے. انسان کے جتنے سوراخ ہے نا سب سے گند نکلتا ہے. آنکھوں سے کیا نکلتا ہے؟ آنسو. کیا وہ کوئی خوشبودار چیز ہے؟ کوئی اپنے آنسو نکال کے آپ پہ مل دے، آپ غصے میں تھپڑ لگاؤ گے، یار کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. ناک سے کیا نکلتی ہے؟ گندی رطوبت. اتنی گھن آتی ہے، وضو خانے میں کبھی یقین نہ آئے تو آئے بیٹھے دیکھیں لوگ کیسے سڑپ پہ لگا رہے ہوتے ہیں، ناک پورے پورے تھپڑے چپکا کے آتے ہیں. یہ آداب ہے نمازیوں کے مسجدوں میں الحمدللہ، پورے پورے وہ چپکائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. تو کان سے کیا نکلتا ہے؟ میل. تیلیاں ڈال ڈال کے لوگ نکال رہے ہوتے ہیں، کسی کو دکھائیں کتنا غصہ آتا ہے، بھائی اپنا گند ہمیں کیوں دکھا رہا ہے؟ ایک سوراخ کان ہے، منہ سے تھوک، کسی کے اوپر تھوکو چماٹ لگائے گا وہ. باقی جو کچھ راستے تو ایسے ہی وہ ہیں ہی گندگی نکلنے کے لیے، ان کا تو تذکرہ کرتے ہوئے بھی گھن آتی ہے، تصور سے بھی گھن آتی ہے. مسام سے پسینہ نکلتا ہے، وہ بھی بدبودار. لوگ کہتے ہیں یار پسینہ آ رہا ہے نہا کے آ جا، تو ذرا سی چمڑی ادھڑے نا اندر کیا ہے؟ گندی گند، خون ہے وہ ناپاک. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہماری ڈیتھ ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، اسی وقت سے باڈی میں تبدیلی آنا، اندر کا گند باہر آنا شروع، اندر کا جو بھی گند ہے نا باہر آنا شروع. تبھی تو میت کو چھپانے کا حکم ہے. میں بار بار یہ جو بات کہتا ہوں نا کہ میت دکھانے کی چیز نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں. تو میں وہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو انسان کی جیسے ہی موت واقع ہوتی ہے فوراً اس کے اندر کا گند باہر آنا شروع. تو انسان کا جو میٹیریل ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی عزت کی جائے. تبھی تو شیطان نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جس کو تو نے مٹی سے، اور مٹی بھی بدبودار مٹی، کھنکھناتی مٹی. بچہ جب ابتدائی دنوں میں حمل ضائع ہو جائے نا تو انتہائی بدبودار ہوتا ہے، وہ سخت اسمیل آتی ہے اس سے. جب وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، انتہائی بدبودار ہوتا ہے. تو مٹی بھی بدبودار مٹی، من حمأ مسنون. تو شیطان نے اعتراض انسان کے میٹیریل پہ کیا، جس میٹیریل سے اس میں جو مال ڈالا گیا ہے وہ تو گارا ہے، وہ تو مٹی ہے، تو مجھے تو نے آگ سے بنایا، میں کیوں اس کو سردہ کروں؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انا خلقناہم مما یعلمون، تمہیں جس چیز سے بنایا گیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. اللہ نے اس کا نام بھی نہیں لیا اس موقع پہ. کیا مطلب؟ تمہارا میٹیریل اس قابل نہیں ہے کہ تمہاری عزت کی جائے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے، کہ تم بڑے مشک اور عنبر کے ٹیلوں سے بنایا گیا تھا، اور آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الاحد نام ہے نا، عبد الاحد بھائی سے وہ خس کی خوشبو لے کر اس میں ملایا گیا، پھر اس سے انسان کو بنا کے اس میں آنکھیں، سونے کی آنکھیں فٹ کی گئیں، اور ناک چاندی کی لگائی گئی، اور کان جو تھے اس میں وہ مشک و عنبر کے بنائے گئے. اور جب انسان جو ہے کان سے میل نکالتا ہے تو چاندی کے ٹکڑے نکلتے ہیں، اور منہ سے جب تھوکتا ہے تو شہد کی نہریں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو ہمارا میٹیریل کسی کام کا نہیں ہے، تو فضیلت کے لیے اور جنت کے لیے عمل کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی تیری شکل تو اچھی ہے نہیں، کم از کم بات تو اچھی کر لیا کر. کراچی میں یہ بہت کہا جاتا ہے، یار انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی کر لے. شکل کی وجہ سے تو تجھ سے محبت ہو نہیں رہی ہے، بات اچھی کر لیتا تو ہم تجھ سے محبت کر لیتے. نہ شکل اچھی نہ بات اچھی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی انداز ہے کہ تم جس چیز سے بنائے گئے وہ اچھا نہیں ہے. ہمیں تم سے محبت تمہارے میٹیریل کی وجہ سے نہیں ہے. تمہاری باڈی سے اچھے اعمال نکلیں گے تو اچھے بن جاؤ گے، اچھے اعمال نہیں نکلیں گے تو شیطان سے بدتر ہو جاؤ گے تم. تو اس لیے دنیا میں بھی عیش کر رہے ہو اور آخرت میں بھی یہ امیدیں لگا کے بیٹھو کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں گے. تو کیا ہے کیا تمہاری باڈی میں کیا قمقمے لگے ہوئے ہیں بھائی؟ کیا ہم کہتے ہیں نا کہ تیرے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو میں تجھے اتنا پروٹوکول دوں، بیٹھ جا آرام سے کنارے پہ جا کے. باراتوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کھانا مجھے نہیں ملا تو کیا کہتے ہیں؟ تیرے سرخاب کے پر لگے ہوئے، آرام سے بیٹھ جائے، جب سب کو ملے گا تجھے بھی مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے جس چیز سے تمہیں بنایا ہمیں پتا ہے. یہ تو اوپر ایک تھوڑی سی لیئر چڑھا دی ہے جس سے تم خوبصورت نظر آتے ہو، ورنہ تو سب بہت سے وہ لیئر کے بعد بھی خوبصورت نظر نہیں آتے ہو. تو میں یہ کر رہا تھا بھائی ہم سب، چاہے کوئی خوبصورت ہو چاہے بدصورت ہو،
یہ تو اللہ نے باریک سی لیئر لگا دی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے سیاہ چہرے قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ سفید. بہت سے بدصورت قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ خوبصورت. کیونکہ قیامت کے دن جو چہرے پہ رونق آئے گی نا وہ سچی مچی کی رونق ہوگی، وہ اعمال کی ہوگی. بہت سے بدصورت لوگ اللہ کی نظر میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بہت سے خوبصورت لوگ اللہ کی نظر میں بہت بدصورت ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں جس میٹیریل سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، یہ اس قابل نہیں ہے. تبھی شیطان نے اعتراض کیا تھا کہ میں کیوں اس کو سجدہ کروں. تو وجہ اس کی یہی تھی، بھائی یہ اعمال، یہ کیا کرے گا؟ ایسے اعمال کرے گا کہ دنیا رش کرے گی اس کے اوپر. یہ برائیوں سے بچے گا، یہ نماز قائم کرے گا، یہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے گا، یہ زنا سے بچے گا، بدنظری سے بچے گا، رشوت سے بچے گا، چوری سے بچے گا. حالانکہ یہ تمام خواہشات اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہوں گی، لیکن یہ کیریکٹر میں ایک نمبر ہوگا. ایک نمبر کردار کا آدمی جتنا مرضی بدصورت ہو، لیکن کیریکٹر اللہ کی نظر میں اس کو اونچا کر دے گا. اور دو کتنے خوبصورت دنیا میں ہم نے دیکھے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں بس، اور جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، نماز چھوڑتے ہیں، قضا کرتے ہیں نماز، کوئی اہمیت نہیں ان کے، بلکہ نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو کتنا مرضی ہینڈسم ہو، خوبصورت ہو، اللہ نے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں جس میٹیریل سے بنایا نا وہ ہمیں معلوم ہے. تو اچھا عمل کر کے اچھے بن سکتے ہو اور جنت کے حقدار بن سکتے ہو. تو مشرکین مکہ جو اپنی صحت پہ، خوبصورتی پہ، مال و دولت پہ ناز کر رہے ہیں، اللہ نے کہا یہ ناز بنتا نہیں ہے تمہارا. عمل لے کر آؤ گے تو آخرت ملے گی، عمل نہیں لے کر آؤ گے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے تمہارا. تو میرے بھائی یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن آج ہم بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں. دنیا میں اللہ کو وہی یاد کرتا ہے جو کسی پریشانی میں آ جائے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ یار آخرت میں بھی کچھ پریشانی ہو سکتی ہے. لیکن دنیا میں جس کو خوشیاں مل رہی ہیں، ساری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، سب کچھ، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے غافل بھی وہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ غفلت کے پردے انہی لوگوں پر آتے ہیں جو دنیا میں خوشحال ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم یہاں خوشحال ہیں تو وہاں بھی کیا ہوں گے؟ خوشحال ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کلا، نا، یہاں کی خوشحالی تو آزمائش ہے، اصل تو آخرت ہے جو ہمیشہ والی زندگی ہے. یہاں اچھا کرو گے تو وہاں اچھا ملے گا، یہاں برا کرو گے تو وہاں انجام برا ہوگا تمہارا. آگے اللہ تعالیٰ انہی آیت میں فرماتے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نخلق مثلہم. کیا آیت ہے؟ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نخلق مثلہم علی ان نبدل امثالہم علی ان نبدل غیرہم. آگے پوری آیت پڑھ لیتے ہیں نا تو ترسا کیوں رہا ہے؟ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. ہاں فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. آگے اللہ کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی. قرآن میں مشرق مغرب کا لفظ تین طرح سے استعمال ہوا ہے. ایک رب المشرقی والمغرب، اللہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی. تو ایک مشرق اور ایک مغرب، یعنی ایک ایسٹ اور ایک ویسٹ. سورہ رحمان میں آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق اور دو مغرب. اور ایک آتا ہے رب المشارق، بہت سارے مشرق. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کبھی قرآن کہتا ہے ایک مشرق ہے، کبھی قرآن کہتا ہے دو ایسٹ ہیں، کبھی قرآن کہتا ہے بہت سارے ایسٹ اور بہت سارے ویسٹ. جب ایسٹ بہت سارے تو ویسٹ تو خود بخود بہت سارے ہوں گے. اس کا جواب یہ ہے، یہ جو قرآن نے کہا نا ایسٹ اور ویسٹ، تو یہ دو سمتیں ہیں. ایک تو وہ سمت ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے ادھر، تو پوری اس سمت کو ایک سمت قرار دیا، اور ایک وہ ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ سورج ہمیشہ، سورج کا ایسٹ تبدیل ہوتا ہے. مثال کے طور پر گرمیوں میں ایک طرف سے نکلتا ہے، اگلے دن تھوڑا سا کھسکتا ہے، وہ اس سے اگلے دن تھوڑا سا ادھر. اصولی طور پر جو اکویٹر کے دائیں بائیں جتنے بھی ممالک ہیں نا، جو اکویٹر پہ نہیں ہے، خط استوا پہ نہیں ہے، بلکہ دائیں بائیں جتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں ڈیلی مشرق تبدیل ہوتا ہے اور ڈیلی مغرب بھی تبدیل ہوتا ہے. بھائی آپ کھڑے ہو کر کسی دن کراچی میں دیکھ لیں، سورج یہاں سے نکلا ہے نا تو ایک لائن کھینچ لیں، اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو ہوگا، وہ اس سے اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو ہوگا، پھر اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو. تو 365 دنوں میں یوں جائے گا اور پھر یوں واپس آ جائے گا. تو یہ جو روزانہ تھوڑا تھوڑا ایسٹ چینج ہو رہا ہے، تو یہ بہت سارے مشرق ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان کو کیا کہا؟ رب المشارق. اور مشرقین کیوں کہا؟ جب یہاں سے نکلا اور 6 مہینے بعد جو اینڈنگ پوائنٹ ہوگا اس مشرق کا، تو وہ الگ مشرق کہا اور اس کو الگ مشرق کہا. تو یہ دو الگ الگ مشرق ہیں.
اس لیے ان آیتوں میں تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ بھی قرآن کی ایک بلاغت ہے کہ جس مشرق یعنی ایسٹ کے لفظ کی جتنی تعبیریں ممکن تھیں وہ قرآن نے وہ تمام تعبیریں استعمال کی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں مشرقوں کے رب اور مغربوں کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں، انا لقادرون، ہم قدرت رکھتے ہیں. کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا نا کہ عمل اچھا ہوگا تو جنت میں جاؤ گے، تو فوراً شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں بھائی اللہ میاں نے کہہ تو دیا ہے، بول تو دیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو یہ سب ختم ہو جائے اور ہم مرمرا کے مٹی ہو کے ختم، لائف کو انجوائے ہی نہ کر پائیں اور سب کیا ہو جائے برباد. یہ تو بڑا مشکل ہے یار، دوبارہ کون زندہ کرے گا. تو اللہ نے فرمایا انا لقادرون، ہم قدرت رکھتے ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، ہم پیدا کریں تم سے بھی بہتر، یعنی جو کنڈیشن آج ہے نا تمہیں دوبارہ اس سے اچھی باڈی میں پیدا کر دیں ہم. یہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ریپیئرنگ کے بعد اوریجنل چیز نہیں بنتی، کچھ نہ کچھ فالٹ رہ جاتا ہے. گاڑی بنی ہوئی ہے، قیمت کیا ہو جائے گی؟ ڈاؤن. اب بن چکی ہے گاڑی. موبائل ایک دفعہ کھل کے دوبارہ بن گیا ہے تو اب قیمت کیا ہو گئی؟ ڈاؤن. لیکن اللہ کہتے ہیں تمہیں تو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اسی جیسا بنائیں گے کہ نہیں، ہم تو اس سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس سے بہتر ہی بنے گا. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے قد اونچے اونچے ہوں گے اور ایسا جسم ہوگا ہمیشہ زندہ رہنے